class 11. This one is principle of mathematical induction. What is principle of mathematical induction? This one is the process of proving a mathematical statement. Clear? This one is the process of proving mathematical statement. For example, 2 and 2 makes 4. This one is one of the mathematical induction, mathematical statement. In same way, suppose we have given a mathematical statement. In that case, first, under the process of this, what do you do? First we have a mathematical statement. This will be represented as Pn. Clear? As I already told you that principle of mathematical induction means the process of proving a mathematical statement. मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने का प्रोसेस है. क्लियर? अब वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे गिवन होगा, जो भी होगा, ठीक है, दैट मस्ट बी. अब इसको उसके बताया ना कि ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस में स्टेप्स आएंगे. क्या आएंगे? प्रोसेस में स्टेप्स आएंगे. तो स्टेप में फर्स्ट जो है स्टेप वन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिडर्ड एज Pn. फॉर एग्जाम्पल भी जो साथ में लेके चल रहा हूं मैं एनसीईआरटी से. क्या है वो देखो. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था 1 + 3 + 3 to the power 2 plus here this one up to 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 over 2. इसमें ज़्यादा डिस्कशन के लिए कुछ नहीं होता. देखो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है. इसको आपने मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उससे इसको वेरीफाई करना है. मतलब जैसे मैंने आपको डेफिनेशन पहले दी थी कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो एक प्रोसेस है मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने का. तो आपके पास जो मीन्स ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर जो मीन्स आपको दे रखा है, ठीक है. ये इस तरह से और मीन्स 3 to the पावर क्या है n - 1. देखो यहाँ पे 3 to the पावर 0 भी लिख सकते हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा है. तो हमने क्या करना है कि मीन्स इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि इज दिस वन इज इक्वल टू दिस. तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी विल प्रूव दिस. देन व्हाट विल डू इन फर्स्ट केस? फर्स्ट दिस वन स्टेटमेंट बी कंसीडर्ड एज Pn. स्टेप 1, लेट Pn such that 1 + 3 + 3 to the power 2 plus 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 by 2. Clear? So first of all you will consider the given statement as Pn. Clear? Step second, we will verify this for n is equal to 1. For each question, first you will consider statement as Pn. Clear? And in the second step, you will verify this statement for n is equal to 1. For n is equal to 1. In each question, you will prove or verify the mathematical statement in same way. Clear? So in second step, you will verify each statement for n is equal to 1. So here we have n is equal to 1, P1 such that इसका जो मीन्स लास्ट स्टेप है इसमें आपने क्या करना है, n को 1 लिखना है. तो इट मीन्स 3 to the power 1 minus 1 is equal to इसमें रखना है 3 to the power 1 minus 1 by 2. This one is 3 to the power 0 here. This one is 3 minus 1 2 over 2. It means 1. 3 to the power 0 is 1. 1 is equal to 1. It means for each statement in second step you will verify the statement for n is equal to 1 only. This one statement is verified for n is equal to 1. LHS is equal to RHS. Here for n is equal to 1, this one is 1. It may be 2 is equal to 2, 3 is equal to 3. It
It is not necessary that this one always result is क्या 1, but this one maybe 2 is equal to 2, 3 is equal to 3 and half is equal to half. Clear? Now step third, what do you do in third step? You will consider this one. इसको आप जो है कंसिडर करेंगे कि this one is true for n is equal to k. Let Pn is true for n is equal to k. For this, putting n is equal to k in here, this one is considered as 1 n first, we get pk such that 1 plus 3 plus 3 to the power 2 plus up to 3 to the power k minus 1 is equal to 3 to the power k minus 1 over 2. Clear? And this one we will consider as second equation. Clear? So in third step, for each question you will consider this one as this one statement is true for n is equal to k. For each question in third step you will consider this one statement is true for every k n is equal to k, where n is natural number, or this one considered as k here. Clear? So this one is considered step. Second step is for every question you will do verify this one for n is equal to 1. Clear? In third step, that's why this one is the process. Mathematical induction is this one is the process to verifying mathematical statement. Clear? Here, step 4. What do you do in step 4? Step 4, here now we have to prove that Pn, it means given statement, is true for n is equal to k plus 1. This one is the process. For each question you will do stepwise. First you will consider the statement as Pn. In second step you will do for n is equal to 1, is the statement verify or not. Third step you will consider that the given statement is true for n is equal to k. And fourth step, now we have to prove that Pn is true for n is equal to k plus 1. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, देखो कंफ्यूजन नहीं करना. n is equal to जैसे हम 2 लिखते हैं, ठीक है, तो भाई n is equal to 2 plus 1 यानी कि 3 हो गया. तो in same way here this one is n is equal to k and this one is k plus 1. तो इसको कंफ्यूज नहीं करना. या n is equal to मैं 5 ले रहा हूँ तो मीन्स नेक्स्ट में n is equal to क्या लेंगे 5 plus 1. तो here this one is the similar way of this, but here this one is the process. That's why we will not take n is equal to 5, n is equal to 6 like this. We will take n is equal to k in each step, and here n is equal to k plus 1 in each step. Then what will you do? Now putting n is equal to k plus 1 in first. Putting n is equal to k plus 1 in first. Clear? So this one will be pk plus 1 is equal to 1 plus 3 plus 3 to the power 2 plus, and here this one is 3 to the power k plus 1 minus 1. Here we will replace n by k plus 1. Clear? And this one is 3 to the power k plus 1 minus 1 over 2. Now after this one is the very important step here. That's why I have to erase this one topic here. This one is the very important topic, very important.
because here this one is the statement where we have to prove this one from LHS to RHS. Then what will you do for this? अब देखो इस स्टेप में क्या करना है उसको देखो जरा। तो इसका LHS क्या है मैं वो ले रहा हूं पहले। इसका LHS है क्या 1 प्लस 3 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस अप टू, अब यहां देखो 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस माइनस 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 टू द पावर क्या हो गया फिलहाल k जो मीन्स हो गया, ठीक है। और फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते हो, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लिख दो इसको k प्लस 1 माइनस 1, क्लियर। अब इसमें क्या करना होता है देखो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस अप टू क्या, इससे जो मीन्स ये तो लास्ट टर्म है, तो बिफोर दिस द टर्म विल बी क्या 3 टू द पावर k माइनस 1 बिकॉज दिस वन इज 3 टू द पावर k। भाई कंफ्यूज मत करो यहाँ पे कि मीन्स ये दिस वन इज द लास्ट स्टेप एज nth टर्म इन APGP। तो बिफोर लास्ट टर्म द सेकंड लास्ट विल बी k माइनस 1, यानी कि अगर सपोज लास्ट टर्म 20 है तो उससे पहले क्या होगी भाई 19 तो होगी। तो ऐसे यहाँ पे है कि देखो इसमें लास्ट टर्म है k, मतलब 3 टू द पावर k है तो इससे पहले क्या होगा 3 टू द पावर k माइनस 1, क्लियर। कि लास्ट स्टेप है आपका 3 टू द पावर k, तो बिफोर दिस the step will be 3 to the power या term will be 3 to the power k minus 1 and before this k minus 2, clear। now using this, clear, equation 2 का जो है यूज करना है यहाँ पे देखो इतना वैल्यू, देखो इतने वैल्यू का ये जो मीन्स ये सीरीज है इसका जो मीन्स वैल्यू है वो कितना है 3 to the power k minus 1 by 2, you will replace this one 3 to the power k minus 1 by 2, here in place of this we will use equation second, clear, and plus 3 to the power k, clear। तो इसका यूज हमने यहाँ पे कर दिया, क्लियर करो। हाँ कि इक्वेशन जो 2 मैंने कंसीडर करी थी n इक्वल टू k के लिए, ठीक है, इसका यूज यहाँ पे कर दिया, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो स्पेस कम है, मैं इधर ही लिख रहा हूं उसको। एलसीएम लो इसका 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k ओवर 2, क्लियर है। एलसीएम ले लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, बट डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब क्या हुआ देखो इसको, अब इसको क्लियर करो कि इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 ओवर 2, लिख सकता हूं या नहीं। ये आपका जैसे 2 इंटू 3 टू द पावर k इट मीन्स 2x एंड हियर दिस वन इज द x, दैट्स व्हाई सम ऑफ दीज टू विल बी 3x, क्लियर। ये 2 इंटू 3 टू द पावर k है ना, इट मीन्स 2x एंड हियर दिस वन इज x, तो रिजल्ट विल बी 3x, क्लियर। एंड दिस वन कैन बी रिटन एज 3 to the power k plus 1 minus 1 by 2, clear, and this one is the RHS of this, hence this one is verified, this one is verified RHS, clear। लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखोगे कि hence it is clear that Pn is true for every का साइन देखो ये ऐसा for every n is equal to n, तो n is equal to n means for each natural number, this one is verified, clear। तो here this one is mathematical principle of mathematical induction। तो once again principle of mathematical induction is the process of verifying mathematical statement, clear। और प्रोसेस क्या है उसके लिए स्टेप है, ठीक है, स्टेप वाइज प्रूवन, जैसे आपने जो है क्या एल्गोरिथम जो मीन्स यूक्लिड ज्योमेट्री जो मीन्स पढ़ा ना 10th में, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी है कि एल्गोरिथम जो मीन्स है, ये एक एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ क्या प्रूविंग प्रूवन स्टेटमेंट,
कि मीन्स वो ऑलरेडी प्रूवन जो मीन्स होता है उसको हमने क्या करना है, उसको प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करना है उसको कि हाँ ये ट्रू है कि नहीं है। तो उसके लिए स्टेप आना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। क्लियर? तो इसके 4 स्टेप्स जो मीन्स में ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। लेकिन देखो इसका जो लास्ट स्टेप है 4th वाला, इस स्टेप में आपने LHS से RHS इसको वेरीफाई करना है। ठीक, और प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैंने क्या कहा 4th स्टेप में ही प्रॉब्लम आती है, जब LHS से RHS आप प्रूव करते हैं तो आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आता। तो एक बार इसको फिर से जो मीन्स क्या है, एक नया क्वेश्चन लेके मैं आपको जो फिर से बताऊंगा कैसे करना है। प्रोसेस यही है, प्रोसेस इसका सेम यही है कि किसी भी स्टेटमेंट को आपने पहले Pn कंसीडर करना है, फिर n=1 के लिए आप उसको वेरीफाई करेंगे, फिर n=k के लिए आप उसको कंसीडर करेंगे कि दिस वन स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड 4th step is the very important step. In this step you will verify that this one statement is true for n=k+1. Clear? And here you will take RHS, and on simplifying this you will get you will take LHS, and on simplifying this you will get RHS. Clear? Now next question. Here this one is the question number 2nd. Once again you can understand what is mathematical इंडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, तो देखो यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मीन्स स्टेप 1 दिस let Pn such that 1 to the power 3 plus 2 to the power 3 3 to the power 3 plus up to n to the power 3 is equal to n into n plus 1 by 2 to the power 2. Clear? Now step 2nd, for n is equal to 1, is this statement true or not? P1 such that 1 to the power 3 is equal to 1 into 1 plus 1 by 2 whole power 2. So here this one is 1 and this one 2 by 2. Clear? 2 by 2 means 1, and whole power of this 2 is also 1. Clear? So this one is verified for n is equal to 1. Clear? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि which is true for n is equal to 1. Clear? Now step 3rd, let in this step we will consider that the statement is true. Clear? Let Pn is true for n is equal to k. ठीक है, that is Pk such that 1 to the power 3, 2 to the power 3, 3 to the power 3 up to n to the power 3 is k to the power 3 is equal to k into k plus 1 over 2 whole power 2. Here in this case इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे, फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 लिखना है इधर से, यहाँ तो स्टेप है ना, वो स्टेप नहीं है, वो इक्वेशन के बेस पे लिख दिया। ठीक है, तो हियर दिस वन 3rd स्टेप में आपने ये बताना है उसको कि भाई ये मतलब डेलिबरेट जो मीन्स हमने कंसिडर कर दिया कि दिस वन इज ट्रू। ठीक है, वो स्टेप है ना, प्रोसेस है वो, तो प्रोसेस में यही जो मीन्स आपको करना है। क्लियर? स्टेप 4th जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो स्टेप 4 क्या है कि नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k plus 1. ठीक है, अब हमने 4th स्टेप में लिखना है कि भाई अब हमें प्रूव करना है कि स्टेटमेंट जो है वो n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है। तो उसके लिए क्या करेंगे? For this putting n is equal to k plus 1 in first। तो फर्स्ट में जो मीन्स क्या रख दो, ये रखो, तो P
k plus 1 such that 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड प्लस k plus 1 to the power 3 का क्यूब, क्लियर, इज इक्वल टू k plus 1 plus 1। तो जहां जहां n है वहां क्या करना है, k plus 1 रख देना है, क्लियर है, कि जहां जहां n है वहां पे k plus 1 रख दोगे। जैसे यहाँ पे k लिखा था ना, जहां n था यहाँ पे k लिख दिया उसकी जगह। ऐसे यहाँ पे जो मीन्स क्या है कि जहां n है वहां k plus 1 रख देना है, ठीक। अब देखो इसका LHS, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हौच-पौच हो गया था, क्वेश्चन ऊपर चला गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसलिए जो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। LHS देखो, LHS है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू k plus 1 का होल क्यूब, क्लियर है। अब देखो इसमें ये लास्ट टर्म है, इसमें k plus 1 लास्ट टर्म है, तो बिफोर दिस क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, बिफोर दिस k। ये लास्ट टर्म है k plus 1, तो बिफोर दिस क्या होगा k, तो k का क्यूब प्लस k plus 1 का क्यूब। तो कंफ्यूज नहीं करना इसमें, ठीक है, कि अगर लास्ट टर्म आपका सपोज n plus 1 होता है, अगर देखो आपने जो APGP पढ़ा है उसमें कि अगर लास्ट टर्म n plus 1 होगा तो इससे पहले क्या होगा n, और इससे पहले क्या होगा n minus 1, बस। तो ऐसा करना है, तो ठीक यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि अगर ये k plus 1 है तो सेकंड लास्ट क्या होगा k। अब देखो इसमें जो इक्वेशन सेकंड है उसको देखो जरा, इक्वेशन सेकंड में यही जो है मींस जो यहाँ तक ये तक है, ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो इसको रिप्लेस करेंगे क्या, इसको रिप्लेस करोगे k plus 1 और बाई 2 और इसका होल स्क्वायर और प्लस k plus 1 और इसका होल क्यूब। तो यहाँ पे लिख दोगे कि यूजिंग क्या, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 2 जो जिसको हमने डेलिबरेट कंसीडर किया था कि मींस द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, उसका यूज यहाँ पे कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो यही वैल्यू इतना जो है और यहाँ पे यही वैल्यू को हमने ये लिख दिया, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो बहुत इजी है सिंप्लीफिकेशन, कि देखो इससे आप क्या कॉमन ले सकते हो, पहले तो ये देखो क्या, अरे इससे कॉमन क्या ले सकते हो भाई, देखो इससे कॉमन मैं ले रहा हूँ k plus 1 का होल स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इसमें जो बचा ये बचा k स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसमें क्या बचा, इसमें केवल k plus 1 बचेगा ना भाई, k plus 1 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, इसमें k बचेगा और 2 बचेगा, उसका होल स्क्वायर बचेगा, देखो k स्क्वायर बाई क्या हो गया, k स्क्वायर बाई 4 हो गया, क्लियर है। और इसमें केवल k plus 1 बचेगा। अब इसका क्या कर लो, अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखो k plus 1 का होल स्क्वायर तो बाहर है, इसको लिखो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और अपॉन 4 का 4, बस इतना, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि k plus 1 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे k plus 2 का होल स्क्वायर और बाई 2 भी कर दो मैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखेंगे इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको खोलोगे तो यही आएगा, और ये 4 था, 4 को मैंने 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हो, अब इसमें जो मीन समझना जरा, यहाँ पे स्टेप जो मीन हौच-पौच हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, देखो k plus 1, इसको क्या लिखोगे k plus 1 प्लस 1 कर दो और इसके ऊपर बार लगा देना, क्यों, क्योंकि जहाँ पे n है उसकी जगह क्या आना चाहिए, k plus 1 आना चाहिए। जब भाई k के लिए तो आपने वेरीफाई कर दिया, जहाँ n है वहाँ क्या आ गया, वो तो आपने कंसीडर कर रखा है, लेकिन इसमें तो वेरीफाई करना है इसको लास्ट, तो जहाँ पे जो है n है उसकी जगह क्या दिखना चाहिए, k plus 1, उसकी जगह क्या दिखना चाहिए, k plus 1, तो k plus 1 जो मीन्स लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे बाई क्या है 2, इसका होल स्क्वायर, तो मीन्स पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। अब क्या है इसका RHS जो देखोगे, इससे मैच करोगे कि जहां n था वहां पे k plus 1 आया या नहीं आया, तो देखो ये n है, यहाँ k plus 1 है, यहाँ n है, k plus 1 plus 1 है, और बाई 2 है, उसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक। तो दिस वन इज द RHS, ये क्या आ गया RHS। लास्ट में लिख दोगे कि hence it is clear that the given statement is true for every n is equal to कैपिटल N। कैपिटल N क्या शो कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सेट कर शो कर रहा है, क्लियर है। तो ये जो मीन्स है
क्वेश्चन पे जो मीन्स वर्क करना है। ठीक है, देखते हैं कि कितना जो मीन्स हो जा रहा है, फिर आगे करते हैं। देखो इसमें एक और एग्जांपल जो मीन्स मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें मल्टीपल और डिविजिबल वाला जो मीन्स एक एक एग्जांपल उसको भी करा देता हूँ, तो फिर उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि मीन्स n n+1 n+5, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो क्या करना होता है इसके लिए, देखो प्रोसेस में क्या करोगे। ठीक है, लेट Pn सच दैट n into n+1 n+5 इज मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? स्टेप सेकंड, ये मतलब स्टेप 1 हो गया, समझो क्या हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, स्टेप 2 फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए देखो P1 सच दैट 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 क्या आ रहा है, यह आ गया 2 इंटू 6, यानी कि कितना, यानी कि 12। और 12 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, इज मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? क्लियर है? n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई हो गया ना कि 3 की टेबल में क्या आता है, 12 जो मीन्स आता है, तो वो मल्टीपल हो गया उसका। क्लियर? स्टेप थर्ड में क्या करोगे, स्टेप थर्ड में जैसे बताया था, के लिए कंसीडर करना है इसको, तो लेट Pn is true for n equal to k, that is Pk such that k into k plus 1 k plus 5, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे 3 लैम्डा c। मतलब अगर हमने ये लिखा कि स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीन्स ये डिविजिबल है किससे, 3 से, इसलिए हर किसी में ऐसे लिखना। मैंने यहाँ पे 3 लैम्डा लिखा ना, अगर 5 का मल्टीपल होगा तो 5 लैम्डा, 7 का मल्टीपल होगा तो 7 लैम्डा, ठीक है, 8 का मल्टीपल होगा तो 8 लैम्डा, ऐसे लिख देना। ठीक है, ताकि इसमें ऐसा कंफ्यूज ना रहे सर कि मीन्स आपने कैसे पता लगा ये लिखना है, क्योंकि देखो हम इस स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, k इक्वल टू n के n इक्वल टू k के लिए, और n इक्वल टू k के लिए अगर स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम उसको ऐसे दिखाना है कि 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल दिखाने के लिए हमने क्या करना है, इसको कि 3 लैम्डा लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है डिविजिबल ऑफ 11, तो मीन्स वहाँ पे 11 लैम्डा लिख दोगे। जैसे अगले वाले में x प्लस वाई आ रहा है, तो वहाँ पे x प्लस वाई इंटू लैम्डा लिख दोगे। क्लियर है? जहाँ पे जैसा रहेगा वैसे लिखना है। अगले में लिखा है उसने डिविजन बाई 8, तो 8 लैम्डा लिख देंगे। जहाँ पे लिखा है मल्टीपल ऑफ 27, तो वहाँ पे 27 लैम्डा लिख दोगे। क्लियर? तो बस क्वेश्चन इस तरह से जो मीन्स क्लियर हो जाएंगे। भाई डाउट वाला तो कुछ रह ही नहीं जाता ना कि सर आपने यहाँ पे 3 लैम्डा क्यों लिखा। मैं कह रहा हूँ कि 3 का मल्टीपल हमने वेरीफाई करना है इसलिए, और इस स्टेटमेंट में हम ये लिखते हैं कि ये ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए। अगर ट्रू है इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 3 से मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है, तो उसको हम कुछ इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, देखो स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में अब ऐसे लिख दो फॉर हाँ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो मीन्स क्या लिखोगे, देखो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो मीन्स आप ये लिखोगे क्या, p k प्लस 1 सच दैट, यहाँ पे क्या करना होता है, देखो जहाँ k है यानी कि जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 लिख दो। k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको कुछ इस तरह से जो मीन्स क्या करना है, एडजस्ट करना है कि इसमें क्या आ जाए। देखो ये रख दिया ना, इसको k प्लस 1 रख दिया, इसको k प्लस 2 लिख दिया, k प्लस 6 कर दिया, तो इसमें भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन भी देख लो कैसे करना है। इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे इसलिए करना पड़ रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन, देखो फैक्टर हमें उस तरह से नहीं मिलेंगे तो क्यों करना पड़ता है। देखो यहाँ पे जो मीन्स इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो गया k स्क्वायर,
ये हो जाएगा 6k और ये हो जाएगा 5। अब इसको k से मल्टीप्लाई करो तो k क्यूब 6k स्क्वायर 5k इज इक्वल टू क्या होगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक, ऐसे क्यों करें क्योंकि इसे सिंगल टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो इसे करो मल्टीप्लाई, तो k प्लस 1 पहले इसका कर लो, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे k क्यूब 8k स्क्वायर 12k फिर आपका k स्क्वायर फिर आपका 8k और फिर 12, फिर इसको ऐड कर लो तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो k क्यूब। ठीक है, और यहीं पे मैं बता दूं कि मीन्स इसमें क्या एडजस्ट करना होता है कि देखो ये वाला टर्म इसके अंदर लाना है, तो इसमें यहाँ पे जो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ऐसे बनाओ देखो कि इतना आ जाए इसके अंदर। देखो ये k क्यूब, यहाँ 6k स्क्वायर है तो यहाँ 8k स्क्वायर है ना, यहाँ 8 क्यों 9 हो रहा है, तो 9 हो रहा है तो यहाँ 6k स्क्वायर लिखो केवल। उसके बाद देखो 5k है तो यहाँ पे से यहाँ हो रहा है आपका कितना 20k हो रहा है, तो मीन्स यहाँ केवल 5k ही लिखो। ठीक है, सॉरी हाँ 5k लिखो, बाकी जो रिमेनिंग है उसको यहाँ लिखोगे। तो रिमेनिंग क्या है देखो, रिमेनिंग है 9k स्क्वायर हो रहा था, मैंने 6k स्क्वायर आगे लिख दिया तो बचा कितना 3k स्क्वायर। 3k स्क्वायर को बाद में लिख दो। यहाँ देखो 12 और 8 कितना है 20k स्क्वायर k है, सॉरी 20k है तो उसमें से 5k मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि जो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमने देखना है उसकी जगह 3 लैम्डा रिप्लेस करना है, तो उसके लिए लिखा है। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है, जो आपके पास k क्यूब लिख दिया, आपके पास हो रहा था 9k स्क्वायर तो मैंने आपको 6k स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 20k हो रहा था तो मैंने 5k लिख दिया, बाकी जो बच रहा है उसको यहाँ लिख दो। तो 3k स्क्वायर बच रहे हैं और 15 जो मीन्स k बच रहा है और साथ में क्या बच रहा है 12 बच रहा है। ठीक है, और साथ में क्या बच रहा है 12। अब देखो इसकी जगह 3 लैम्डा लिख देना है, किसकी जगह, यहाँ देखो इसकी जगह मैंने लिख दिया 3 लैम्डा, बाकी बचा 3k स्क्वायर 15k और बाकी बचा 12। क्लियर, कि मीन्स जो k वाला स्टेप है उसके अंदर क्या है रिजल्ट k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। ठीक है, तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमने वही टर्म ढूंढनी है इसके अंदर, क्या k क्यूब 6k स्क्वायर और 5k। तो देखो k क्यूब 6k स्क्वायर 5k, लेकिन इसमें क्वांटिटी ज्यादा है ना, ये 8k स्क्वायर ये है, k स्क्वायर 9k स्क्वायर हुआ था, मैंने केवल 6k स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 20k हो रहा था तो मैंने 5k लिखा हुआ है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है समझने के लिए। ठीक है, लेकिन जो बच रहा था, क्योंकि देखो 3k स्क्वायर बच रहा था, मैंने ये लिखा हुआ है, 15k इधर लिख दिया 12k, और जो ये वाला जो मीन्स स्टेप था, इसी ये जो वैल्यू थी इसकी जगह क्या लिख दिया 3 लैम्डा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे उसको यूजिंग क्या, यूजिंग फर्स्ट, सपोज मैंने इसको अगर फर्स्ट ले लिया तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, या अभी तक सेकंड लिखा था तो उसको सेकंड ही देने दो, इस वाले को जो मीन्स क्या है फर्स्ट लिख देना। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना, तो यूजिंग टू जो मीन्स, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। अब देखो इसमें सब में क्या कॉमन आ रहा है, देखो सब में 3 कॉमन आ रहा है, लैम्डा ये जो k स्क्वायर ये आपका 5k हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर, तो किसका मल्टीपल निकला, ये भी 3 का मल्टीपल निकला बस। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे कि मीन्स विच इज मल्टीपल ऑफ 3, hence this one statement is true for every n is equal to n। ठीक है, लास्ट में तो लिख ही दोगे। ठीक है, इतना सबको आना चाहिए कि लास्ट में क्या लिखोगे, hence it is clear the given statement या pn is true for every n is equal to n। क्लियर है, तो ये एक मैंने ये वाला बता दिया। ठीक है, जैसे मल्टीपल वाला है सेम जो है डिविजिबल वाला भी वैसे ही करना है। ठीक है, फिर भी चाहते हो तो मैं इक्वेशन उसका भी जो मीन्स लेके करा रहा हूँ आपको। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको समझना है। देखो अभी क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं कि मीन्स डिविजिबल बाय 11 जो मीन्स इसको प्रूव करना है तो क्या करोगे। ठीक है, लेट Pn सच दैट 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। क्लियर, तो तुम्हारा ये स्टेप 1 हो गया मतलब। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, फॉर n is equal to 1 तो P1 सच दैट 10 to the power 2 into 1 minus 1 plus 1, तो कितना हुआ ये देखो 2 minus 1 तो 10 हुआ, 10 plus 1 तो कितना हुआ 11 इज डिविजिबल बाय क्या, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 11 से डिविजिबल हो गया। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है,
let Pn is true for n इक्वल टू k, ठीक। और n इक्वल टू k के लिए अगर वो ट्रू है तो क्या करना है उसके लिए, दैट इज pk such that 10 to the power 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 lambda c। क्लियर है, क्योंकि ये कंसिडर जो मीन्स कर दिया कि ये k के लिए n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो क्या करना है उसको 11 लैम्डा ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या करना है, ठीक है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 जो मीन्स क्या है, Pn में n की जगह k प्लस 1 रख दो तो ये हो जाएगा pk प्लस 1 सच दैट 10 टू द पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसमें हमने इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि इसके अंदर ये रखना, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाए, कौन सा, ये के वाला सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर लाना है। तो कैसे करोगे, देखो उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 10 टू द पावर क्या 2k भी ठीक है, यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 2 जो है उसको अलग कर दो और प्लस 1, जरा समझो इसको क्या किया मैंने यहाँ पे कि इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2k प्लस 2 माइनस 1 को आगे रहने दिया, ठीक है। अब इसको जो क्या लिख सकते हैं उसको समझो जरा, ठीक है। 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 2 मीन्स 100 इंटू 10 टू द पावर 2k माइनस 1, कंफ्यूज है अभी। 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 का मतलब क्या होता है कि 10 की पावर 2k भी है, माइनस 1 भी है और 2 भी है। तो 10 की पावर जो 2 है उसको क्या लिखोगे, अब या तो ऐसे समझ लो 10 टू द पावर 2, ठीक है, और प्लस 1। अब यहाँ पे से क्या करना है, देखो कि ये 10 टू द पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11 लैम्डा माइनस 1, ऐसा चेंज कर लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना बने कि इससे ये वाला रिप्लेसमेंट यहाँ दे दो। तो उसका यूज करके देखो मैंने यहाँ पे 11 लैम्डा माइनस 1 और इसके साथ 10 टू द पावर 2 मीन्स 100 कर दिया प्लस 1 कर दिया, आगे समझ। यहाँ पे इतने की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको यूजिंग 2 जो मीन्स ये वाला जो है मीन्स 1 होता है, तो यहाँ पे यूजिंग क्या, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक। अब इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ, इसको देख लो, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो रहा है आपका क्या 1100 माइनस 100 प्लस 1, फिर बताओ क्या हुआ लैम्डा, फिर जो मीन्स 1100 और माइनस 99, क्लियर। इसमें से फिर क्या कॉमन आ रहा है 11, तो अंदर क्या बचा 100 लैम्डा माइनस 9। अब देखो बाहर जो 11 आ गया इसका मतलब डिविजिबल हो गया किससे, 11 से, तो लास्ट में लिख देंगे कि मीन्स क्या इज डिविजिबल बाय 11, क्लियर है। तो इस तरह से जो मीन्स क्या है आपने इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक। देखो यहाँ पे मेन टेक्निक है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की, अगर ये बच्चा समझ जाता है कि मीन्स कैसे जो मीन्स सब्स्टिट्यूशन देना है तो मीन्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो मैंने कहा स्टेप 4 जो मीन्स आपके लिए क्या है, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको बार बार जो मीन्स वीडियो को आप क्या रिव्यू करके जो मीन्स देख सकते हो कि क्या कह रहा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वन टाइम में नहीं आने वाला समझ में, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मीन्स जो आप लैम्डा ये कंसिडर कर रहे हो सेकेंड जो मीन्स इक्वेशन है, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूशन देना है किसमें, फोर्थ वाले स्टेप में, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, जब आप वो सब्स्टिट्यूशन दोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 11 कॉमन आ जाएगा, जिससे डिविजिबल होता है वो कॉमन आ जाता है। अब वो एल्जेब्रा वाला जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मीन्स क्या है, एल्जेब्रा वाला जो मीन्स है उसमें x प्लस वाई कॉमन आएगा सब में, ठीक है, प्रोसेस एक जैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अभी जो मीन्स नेक्स्ट क्या जो मीन्स कर रहा हूँ। हाँ देखो एक क्वेश्चन मैंने जो है मीन्स लेस देन मतलब इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी ले लिया, इसको देखो कैसे जो मीन्स आपके पास है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है इसमें कि लेट Pn सच दैट 2n plus 7 लेस देन n plus 3 टू द पावर दिस, ठीक है, ऐसे लीजिए। अब जैसे स्टेप जो भी स्टेप 1 होंगे, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, तो P1 सच दैट 2 इंटू 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 टू द पावर दिस, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया कितना 4 का स्क्वायर क्या हुआ 60,
ठीक, तो ट्रू हो गया, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्लियर है भाई? देखो 16 ग्रेटर ही होता है ना 9 से, 1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, अब जो मीन्स क्या करना है, देखो थर्ड में कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, तो k जो मीन्स के लिए क्या करना होता है, देखो ये कर दिया मैंने, pk सच दैट 2k प्लस 1। ठीक है, 2k सॉरी 2k प्लस 7 और ये n प्लस इसको भी क्या कर दो k प्लस 3। ठीक, अब जो है मीन्स लास्ट ये तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी यहाँ तक। फोर्थ वाले में क्या करना होता है, ठीक है, कि फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जो मीन्स क्लियर करो कि हमने जहाँ पे मतलब n है वहाँ पे क्या लाना है, वहाँ पे हमने k प्लस 1 जो मीन्स लाना है। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, देखो फॉर दिस। ठीक है, देखो इसमें ऐड कर दो, वहां सब्स्टिट्यूशन करने की बजाय जो मीन्स क्या कर दो, ऐड जो मीन्स करो इसके। ठीक है, क्या करना है, देखो pk प्लस 1 यहाँ पे 2k प्लस 2 प्लस 7 लेस देन k प्लस 3, मतलब दोनों साइड ऐड कर दो, स्क्वायर प्लस 2, ऐसा करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो k प्लस 1 के लिए करना है इसको। हाँ देखो मैंने क्या किया कि दोनों साइड क्या कर दिए, 2 अगर ऐड कर दिए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई चीज नहीं है। इससे क्या होगा, देखो 2 इंटू के प्लस 1 ये, ठीक है, और प्लस 7, तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो देखो जहाँ पे n है उसकी जगह k प्लस 1 आ गया। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है क्या, ये देखो ये k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k और प्लस 2। ठीक है, ये तो इसको हमने क्या करना है, देखो इसको हमें लाना है k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि k प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो k प्लस 4 के होल स्क्वायर में क्या चाहिए, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। हमारे पास यहाँ कितना है, हमारे पास यहाँ पे केवल 6k, और हमें क्या चाहिए, हमें 8k चाहिए। यहाँ 9 to 11 हो गया, तो कितना कम है, कितना कम है, देखो ना यहाँ हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए, 9 और ये आपके पास 9 और 2 कितना 11 हुआ, तो वहाँ पे 5 जो मीन्स क्या है, कम है। ठीक, तो देखो ये समझना है यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने वेरीफाई करना है और मीन्स दिस वन इज ऑलरेडी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, इसलिए इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मीन्स करता है। क्या करना है इसमें, देखो k स्क्वायर, ठीक है, तो इतना ऐड कर दो इसमें, इस साइड। क्यों करेंगे भाई, कि दिस वन इज ऑलरेडी ग्रेटर देन दिस ना, ये तो पहले से ही बड़ा है इससे, तो उसमें कुछ भी ऐड कर दोगे तो ऑलरेडी क्या होगा, बड़ा रहेगा। तो उसमें क्या करना है, k स्क्वायर, ठीक है, कितना ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पे, वो ऐड कर दो उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8k। ठीक है, या तो एक इससे बढ़ जाएगा अगर मैं ऐड करता हुआ दिखाऊंगा। तो क्लियर हो गया कि कितना ऐड करना है, ये ऐड करना है 2k प्लस 5 ऐड करना है किस साइड, इस RHS में, क्योंकि ये तो इनइक्वालिटी है ना। ठीक है, तो और ये दिस वन वैल्यू इज ग्रेटर देन, ऑलरेडी ग्रेटर देन दिस। अब इसमें अगर कुछ भी ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वेरीफाई करने के लिए क्या कर दिया, 2k प्लस 5 इसमें ऐड कर दिया। ठीक, तो समझो उसको, जब 2k प्लस 5 ऐड करोगे तो ये 8k हो जाएगा, ये जो मीन्स कितना हो जाएगा, ये जो है 16 हो जाएगा। ठीक, तो क्या बना ये बना आपका k प्लस 4 का होल स्क्वायर, या फिर जो मीन्स इसको लिख दोगे k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसको जो है समझना है, मतलब कौन सी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम जो मीन्स, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी लेस देन है ऑलरेडी, उसमें कुछ आप माइनस जो है अगर कर दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और दोनों साइड ऐड करना चाहते हो तो 2 मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ा उससे। ठीक है, ये भी कर सकते हो। लेकिन जब कोई भी RHS या LHS इसमें जो मीन्स ग्रेटर होता है या लेसर होता है, उसमें आप अगर ग्रेटर है और उसमें आप कुछ क्वांटिटी ऐड करोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट में। ठीक, तो ये देखो ये क्लियर कर लो। ठीक, तो दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें क्या करना है वो आपने अंडरस्टैंड जो मीन्स किया, कि मैंने क्या कहा कि मीन्स अगर कोई क्वांटिटी ऑलरेडी ग्रेटर है, अगर इक्वल है तो उसमें तो नहीं कर सकते ना आप, लेकिन ये क्या है, इनइक्वालिटी है। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया कि 2k प्लस 5 रिक्वायरमेंट था मेरे को, तो मैंने ऐड कर दिया उसको साइड,
क्योंकि इधर जरूरत नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है ये, ठीक है, कि जहाँ पे n है उसमें k+1 मेरे पास आ चुका है पहले से। लेकिन RHS में मुझे उसको क्या करना है, k+1+3 का होल स्क्वायर बनाना है। अच्छा, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 2k+5 जो लेस हो रहा था, ठीक है, तो लेस हो रहा है तो उतनी क्वांटिटी उसके अंदर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेटर क्वांटिटी है। और उसमें अगर 2k+5 ऐड कर लेता हूँ तो मीन्स क्या, दिस वन रिमेन ग्रेटर, वो ऑलरेडी ग्रेटर जो मीन्स है, तो अगर ऐड भी कर दूंगा तो ग्रेटर रहेगा। क्लियर? तो दिस वन इज ऑल अबाउट principle of mathematical induction. If you have any requirement you can comment. Till then, bye bye. Thanks for watching.